لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ پونچھ کے گاؤں شیندرا کے رہنے والے اذکار علی شاہ کی موٹر سائیکل 30 اور 31 جنوری کی درمیانی شب کو شیندرا وارڈ نمبر 1 سے غائب ہو گئی۔ اس مناسبت سے اذکار علی شاہ نے بتایا کہ میں شام کو سید اکبر شاہ غازی علیہ رحمہ کی زیارت کے قریب بائک پارک کر کے گھر آیا اور صبح جب واپس لوٹا تو اپنی بائک کو وہاں نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ میری تمام عوام سے اپیل ہے کہ اگر وہ کہیں بھی اس نمبر کی بائک کو دیکھیں تو وہ پولیس سے یا پھر مجھے اطلاع کریں، میں اطلاع کرنے والے شخص کا ہمیشہ مشکور و ممنون رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غریب عوام کی اس طرح سے اگر گاڑیاں چوری ہوں گی تو وہ کس طرح سے زندگی بسر کریں گے۔ وہیں پولیس کو بھی اس معاملے میں مطلع کر دیا گیا ہے اور پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیق بھی شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ہی مین بس اسٹینڈ پونچھ سے ایک PDD ملازم کی بائک دن دہاڑے چوری ہو گئی تھی اور آج پھر سے گاؤں شیندرا سے ایک بائک چوری ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ میرا نام اذکار علی شاہ سر، میری موٹر سائیکل جو ہے وہ 74 JK12، تو وہ رات کو میں یہاں کھڑی کر کے گیا 30 جنوری کو، تو صبح آ کے دیکھی یہاں پہ نہیں تھی۔ یہ زیارت اکبر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وارڈ نمبر 1 شیندرا ہے یہ۔ تو یہاں سے رات کو موٹر سائیکل چوری ہوگی میری، تو بہت اچھی گاڑی تھی، تو میں نے آج پھر پولیس اسٹیشن پونچھ اپلیکیشن دی، انہوں نے لکھا کلائی پوسٹ پہ، تو وہاں بھی انفارمیشن ہو گئی ہے۔ تو میری ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ پلیز مہربانی کر کے نظر ثانی کی جائے، تو جو چور ہیں یہ پکڑے جائیں، کیونکہ آئندہ پھر یہاں سے چوری ہوگی۔ اگر گاؤں میں سے ایسے غریب لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو جائیں گی تو پھر بہت مشکل ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ کہیں بھی آپ کو یہ نمبر اگر آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو پلیز مہربانی کر کے تو میری گاڑی کی ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ گاندربل پولیس کی جانب سے ضلع سے تعلق رکھنے والے 65 بچوں پر مشتمل ایک گروپ ملک ہندوستان کی سیر پر آج روانہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن گاندربل میں منعقدہ ایک تقریب پر SSP گاندربل سندیپ گپتا نے اس گروپ کو جھنڈی دکھا کر ملک کے دورے کے لیے روانہ کیا۔ 7 دنوں کے اس ملک گیر سیر میں بچے دہلی اور چنئی کے مختلف شہروں کا سیر کریں گے۔ روانگی سے پہلے SSP موصوف نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ملک گیر دوروں سے آپ کو ملک کے دیگر لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم ہوگا، نیز الگ الگ تہذیب و تمدن کی جانکاریاں بھی آپ کو ملیں گی۔ اس ٹور کے حوالے سے بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پولیس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جس کے تحت وہ ملک کی سیر کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے گاندربل سے مختار احمد کی رپورٹ۔ جانے والے ہیں آج، اور ایک بہت اچھا ٹور نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو بچہ نہیں گیا ہے، جو وہاں اس ٹور پہ نہیں گیا ہے، مثال پور فیملی بلانگ کریں گی تو جیل کی پولیس کا شکر گزار ہے۔ باقیوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے میری کہ مطلب آج کل زیادہ ڈرگس میں وغیرہ یہ وہ، تو میری یہی میسیج رہے گی ان سے ڈرگس کو چھوڑیں اور پولیس کے ساتھ اپنا تعاون رکھیں۔ لمبے خشک موسم کے بعد اب برف باری اور باران کا سلسلہ جموں کشمیر میں شروع ہو چکا ہے، جہاں میدانی علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، وہیں پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے۔ اس بارش اور برف باری سے عوام میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے اور خاص طور سے کسان طبقہ خوش و خرم نظر آ رہا ہے۔ کئی کسانوں نے بتایا کہ ہمیں اس بارش کی کافی عرصے سے ضرورت تھی اور انتظار تھا، جو اب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں جموں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں، اور وہ سیاح حضرات جو سردیوں کے موسم کا آنند لینے کے لیے وادی کی طرف پورے ملک سے کوچ کرتے ہیں وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اسی بیچ سردی میں بھی کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس برف باری بارش کے آنے سے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اور
पर आवाम खुश नज़र आ रही है। वहीं कई मकामात पर लोग आग सेकते हुए भी दिखाई दिए और इस ठंड के मौसम का लुत्फ लेते हुए नजर आए। रियाज मलिक की रिपोर्ट। फसलें भी अच्छी होंगी, अब पानी बढ़ेगा, बिजली हर चीज़ से हमारी सहूलियत होगी। और देखो अभी यहाँ तो बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन अल्लाह से यही कहते हैं, दुआ करते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर अगर बर्फबारी हो रही है तो थोड़ी बहुत यहाँ भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। रामबन ज़िला के मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर आवाम को EVM और VVPAT मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के अगराज़ व मकासद के मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारान ने बताया कि आवाम को आगाह करना है कि ये वोटिंग सिस्टम सिक्योर है और इस मशीन से आप किस तरह से वोट कास्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जिस भी उम्मीदवार को वोट डालते हैं आपको साथ पता चल जाएगा कि ये आपका वोट किसको पड़ा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान हम आवाम को अवेयर भी कर रहे हैं कि वो अपने हक़ के राय दहिंदगी का इस्तेमाल ज़रूर करें और किस तरह से सही तरीके से वोट कास्ट किया जा सकता है, इस मुतल्लिक़ जानकारी आवाम तक पहुँचाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। और इसी सिलसिले में हमें भी पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर ट्रेनिंग दे के हमें भेजा है जगह जगह पे, गाँव में और पहले हम सब डिवीजन लेवल पे थे, अब हमने पोलिंग स्टेशंस को कवर करना है। और पोलिंग स्टेशन जो सलवाला हमें दिया गया था, इसमें आज हम लोगों को बता रहे थे कि EVM और VVPAT जो ट्रेनिंग है इसमें किस तरह से वोट कास्ट किया जाता है। इसका मेन मकसद जो है सबसे बड़ा कि वोट टर्नआउट को इंक्रीज़ करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाए और ये स्वीप के अंदर भी आता है। निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शाबान रज़ा चिश्ती ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग एंड सिविल एविएशन एजाज असद से मुलाकात की। वहीं उन्होंने भूपिंदर कुमार IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी PWD R&B डिपार्टमेंट से सिविल सेक्रेटरी जम्मू में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई अमूर पर इन दोनों आला अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया और पुंछ के कई जेन्युइन इश्यूज़ डिस्कस किए गए। खुश्क मौसम के बाद अब बर्फ़ और बारिश का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। बारिश और बर्फ़ की आमद से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट नज़र आ रही है। एक जानिब जहां किसान तबका ताज़ा बर्फ़बारी और बारिश से खुशोहरम नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब आम आवाम में भी मौसम सरमा की बर्फ़बारी और बारिश से खुशी लौट आई है। बनी इलाके के किसानों ने लाजवाल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमें इस बारिश की काफ़ी अरसा से ज़रूरत थी और हम बारिश और बर्फ़ के इंतज़ार में थे। बारिश हुई है और इससे फसलों में भी जान पड़ गई है और हमारे चेहरे भी खुशी से खिल चुके हैं। वहीं महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारान ने इस बारिश को किसानों के लिए काफ़ी सोदमंद बताया। पंचायत का रहने वाला हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और फार्मर हूँ। हम जिम्मेदारी के ऊपर हमारा सारा डिपेंड था, लेकिन इस साल जो है तकरीबन 2.5 महीने के बाद जो बारिश हुई है, इससे पहले काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है बगैर बारिश के। बरसात के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस साल राजमाश की फसल बिल्कुल ख़त्म थी, अखरोट की फसल नहीं हुई, ये क्या कहते हैं, ये सेब नहीं हुए, सब बारिश की वजह से। लेकिन अभी जो बारिश हुई है, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसका करम हुआ कि उसने आज फिर मुर्दा ज़मीन को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज पानी के हैं वो रिस्टोर होंगे इससे, और आने वाले सीज़न में जो हमारी पोटैटो की जो क्रॉप लगेगी उसको भी बेहतर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब 100% लोग जो हैं वो खुश हैं और ये पानी का जो रिस्टोरेशन का जो प्रोग्राम है ये जिससे सही हो जाएगा। जिला पुंछ के तहसील मंडी के गांव सलोनिया B की आवाम आज भी सड़क की मुंतज़िर है। एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल ये पंचायत काफ़ी वसी और अरीज़ है, लेकिन लोगों को सड़क की सहूलत न होने की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी रोड की है नहीं। जितना भी एग्रीकल्चर का जो भी फ्रूट वगैरह जितना भी माल हमारा यहाँ पे अवेलेबल है वो कहीं भी जा नहीं सकता। अवाम ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से ना ही तो किसान अपनी पैदावार को सही दामों में मार्केट तक पहुँचाकर उसे फ़रोख्त कर सकता है और ना ही बीमार लोगों को यहाँ से बआसानी हस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। फल फ्रूट है ये ज़ाया जाता है, जो टाइम पे नहीं पहुँच पाता है जम्मू या किसी और मंडी में पहुँचने के लिए इसको गाड़ी की ज़रूरत है, और यहाँ कैरेज बहुत पड़ता है जिससे हमारा फ्रूट यहीं ज़ाया हो जाता है। वहीं लोगों ने कहा कि इस इलाके में चलना काफ़ी दुश्वार है। सड़क के ज़रिए आज हर गांव को शहरों के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन सलोनिया B पंचायत की आवाम का कहना है कि हमारी जानिब आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कनेक्टिविटी जो है वो रोड से होती है,
तो वो आपने देखा कि यहाँ पर रोड नहीं है। हम 2-3 फैमिली हैं इस जगह पे, आप अगर घूम पड़ कर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स में मेरे ख्याल इतना बड़ा बाग नहीं होगा किसी का जितना हम 2-3 फैमिलियों का ये इकट्ठा एक ही जगह पे है, लेकिन ये तमाम फ्रूट ज़ाया हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी भी मेरे अखरोट ज़ाया हो रहे हैं, उतारें कौन ले जाएगा, मजदूर मिल नहीं रहा है, रोड की कनेक्टिविटी है नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया है नहीं है। तो इसी तरीके से नाशपाती बर्बाद हो गई, सब्ज़ी बर्बाद हो गई, सेब तो होता ही बर्बाद है। लोग कहते हैं कि बड़ी तगद्दो और मेहनत के साथ हम ये बाग लगाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के फलदार पेड़ पौधों के साथ साथ मौसमी सब्ज़ियाँ भी उगाई जाती हैं, लेकिन वक्त पर मार्केट तक न पहुँचने से हमें इसका मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है। आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि सलोनिया बी पंचायत को भी बज़रिया सड़क शहरों से जोड़ा जाए ताकि इस दूर दराज इलाके के लोग भी जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। यहाँ पर तवज्जो ली जाए तो मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स में सब्ज़ी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ से इंपोर्ट होगी। यहाँ पे इतनी सब्ज़ी हो सकती है।